everyone, welcome to another episode of Match Point by Dr. Adnan और आज हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जी अदनान जी दिलशी थैंक यू वेरी मच हेलो एवरीवन बैक इन कनाडा वेक अप अमेरिका डॉक्टर अदनान विद यू लाइव फ्रॉम दुबई और हम यहाँ पर एमसीएल मास्टर चैंपियन लीग के सिलसिले में दुबई में मौजूद हैं 2 वीक से हम यहाँ पर हैं और आपने देखा कि कितना सक्सेसफुल इख्तिताम हुआ मास्टर चैंपियन लीग का। लेकिन इस सारे अरसे में और इस सारे टाइमिंग्स में जब मास्टर चैंपियन लीग रही आपको हम बताते रहे वक्तन के एमसीएल शुरू कैसे हुई, लेकिन उसके बावजूद आप जानना चाहेंगे कि व्हाट इज मास्टर चैंपियन लीग, फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, हु वाज द वन हु वाज बैकिंग दिस अप, फ्रॉम वेयर इट केम, वेयर द आइडिया जनरेटेड। टोरंटो कैनेडा। Yes, we are having a very special guest, very honorable guest, the chairman of GM Sports and the chairman of this Master Champion League, Zafar Shah. Assalamu alaikum sir. Walaikum salam. कैसे हैं सर आप? Thank you very much. Sir, first of all, congratulations to you for the successful event. और मैं नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि हम पूछेंगे सवालात ज़फ़र साहब से, लेकिन ज़फ़र साहब is the one, he is the one जिनका ये ब्रेन चाइल्ड था कि किस तरह से एक प्लेटफॉर्म पे तमाम खिलाड़ियों को इकट्ठा किया जाए और हाउ टू जनरेट एंड हाउ टू स्टार्ट द क्रिकेट इन द डेजर्ट। बहुत सी लीगें आ गई, अब तो बहुत सी लीग्स आ गए, अमेरिका में आ गए, लेकिन वो सब इसके बाद आए। सब द फर्स्ट वन टू लॉन्च वाज दिस, द फर्स्ट वन टू लॉन्च इन बुर्ज अल अरब, जिस तरह के मैं आपको बताता रहा अपने प्रोग्राम्स में, 3rd of June लास्ट ईयर वाज दिस, ऑल द आइडियाज जनरेटेड आफ्टर दिस। जी ज़फर साहब, वी विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द दिस क्वेश्चन कि ये पहले तो ये बताएं कि ये आइडिया आपको बैठे बैठाए किसी ने जहन में डाला, आपको खुद आया, या क्या कोई एक्सटेम्पोरेट हुई, हाउ डिड दिस स्टार्टेड इन योर माइंड? देखिए, आइडिया तो लाजमी आता है कि छोटी सी कहीं से कहीं ना कहीं ये बीज डाला होगा किसी ने, तो वहाँ से ये पेड़ उगा है। तो मुझे याद नहीं कि किसने बीज डाला था, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन स्लोली it built up and I came with the idea when the masters, the players are playing their games for years, 10 years, 15 years, and then they all disappear. So automatically, like, I'm running a team here with my Grand Midwest Hotel at the domestic level. So we have a number of players who is currently playing for Pakistan and UK and in England teams and South African teams. And obviously Dubai is a very common, logistically is very appealing to the players who come and play games for the Pakistan and the other part of the county teams are coming and playing here. So we thought, we've been supporting those players for the years. ICC have their associated members, they're coming and staying in our hotels. From there the love of cricket developed years back, and obviously we built up a team of a Grand Midwest, and here we are, with this, slowly we built up this MCL, the power of the players, they disappears over the years, we don't know where they went, like you've seen Lara, Gilchrist, there's so many 90 odd players was actually associated with MCL. So we just thought about a few years back. So sir, when you thought for the first time, was any time in your thoughts it came, it will be like this, how I will gather them, will they come or not? Any doubts in your mind, or you were 100% sure about this commitment? Well, I was 110% sure, because obviously without the determination you cannot achieve a goal of this caliber. It was a very long road for us, and we worked hard with a very small team. Karan More was the first one to join. Indian wicketkeeper. We traveled around the globe. We met many of the players, brainstormed them. We share ideas, and eventually we managed to convince the players. Obviously, the strength of this tournament is, or any game, is the players, and we managed to convince those. This is the game for you, the tournament is for you, is for the players, by the players. So this is what we are giving to the world. And बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे दिलनशी, मैं ये बताना चाहूँगा नाज़रीन को कि शायद आप में से बहुत से लोग ज़फ़र साहब से वाकिफ़ ना हों दुबई के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान में जो नाज़रीन हैं वो जानते हैं, जो पाकिस्तानी नाज़रीन हैं और लिस्टर्स हैं,
कि क्रिकेट का अख्ताम पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 2009 के बाद से पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेली जा रही ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस. सो दुबई, अबू धाबी, शारजा हैज बीन डिक्लेयर्ड एन अल्टरनेट होम फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. पाकिस्तान क्रिकेट को जितना भी यहाँ फ्रोग मिला और उनकी जो स्पोर्ट रहती है और उनके जो आप मैचेस देखते हैं आप बखूबी वाकिफ होंगे, जो ग्राउंड में स्लॉगन्स बने होते हैं, आपने देखा होगा बाउंड्री के पास जहाँ से बॉलर्स जो हैं, शोएब अख्तर जब भागा करते थे और जो रन अप लिया करते थे तो लॉन्ग रन अप के नीचे GM स्पोर्ट्स, ग्रैंड मिडवेस्ट होटल, वो सब जफर साहब की काविशों की वजह से था. वो पाकिस्तान टीम को बैक कर रहे थे, क्रिकेट को बैक कर रहे थे. बड़े अरसे से जो मास्टर ब्लास्टर के अवार्ड दिए जाते थे वो भी इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन की वजह से दिए जाते थे. तो जफर साहब की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट पाकिस्तान टीम के साथ थी. पाकिस्तान टीम का जो इनका होटल और इनके अपार्टमेंट और इनका जो यहाँ एरिया है वो पाकिस्तान टीम का एक्टिविटीज़ का गढ़ होता था. वहाँ पर सब ये जो बड़ा गेट टुगेदर होते थे, पाकिस्तान टीम जो सितारे जो चमकते थे दुबई में, तो वो इसी जहाँ हम बैठे हुए हैं इसी फ्लोर की जो है वो जीनत बनते थे. यहीं पर वो सारी क्रिकेट की जो मस्तियाँ होती थी और जो लोग देखना चाहते थे, फैंस वगैरह, वो यहीं सब कुछ चलता था. तो ही इज़ नॉट न्यू टू द क्रिकेट. हिज पैशन एंड लव फॉर द क्रिकेट इज़ फॉर लॉन्ग, बट दिस वॉज द आइडिया विच वॉज प्योरली जनरेटेड बाई हिम एंड द ड्रीम केम ट्रू. और हमने देखा कि मास्टर चैंपियन लीग हाउ सक्सेसफुल इट वॉज. नीलिम केटाल की जेमिनी अरेबियंस ने इस सीजन 1 मास्टर चैंपियन लीग को जीत लिया और क्या खूब जीता. एक 6 wins, 6 on the trot. तो जफर साहब, ये मैं जानना चाहूँगा कि अब जब इतना सक्सेसफुल लीग हुई, अब आप वेयर यू आर लुकिंग फॉर द सीजन 2, एनीथिंग इन योर माइंड हाउ टू इम्प्रूव दिस, या कोई ऐसी चीज़ जो आप समझती हो कि इसमें कम रह गई है, आपकी नज़र से लगता हो आपको कि ये एग्जीक्यूशन ठीक नहीं हुई, मज़ा नहीं आया, ऐसे क्या जगह थी जो आप समझते हैं कि जिसको आप पहले से ज़्यादा अच्छा लेके आएंगे? एंड व्हाट यू आर थिंकिंग कि फ्रेंचाइजेस जो हैं अब 6 थी, क्या ये बढ़ेंगी, 6 से 7 या 8 जाएंगी? क्या हम सारे ज़ोडिएक साइंस लेके आएंगे या 6 ही आएंगे? आप तो इतने क्वेश्चन पूछ लिए, एक सवाल पूछते तो दूसरा जवाब देता मैं. ये तो 5-6 पता नहीं सवाल दिमाग में रहेंगे भी नहीं. जी, हम स्टार्ट लेते हैं कि इस बात से हम स्टार्ट इस बात से लेते हैं कि अब जो सीजन 1 हो गया सक्सेसफुल, माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब सीजन 2 को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अच्छी बात क्या है कि सक्सेसफुली सारे टीम प्लेयर्स ने एक प्रूफ करके दिखाया कि हम लोग अभी भी क्रिकेट को उस पैशन से खेल सकते हैं जब वो अपनी रिटायरमेंट से पहले जब वो खेलते थे, वो पावर उनमें है. तो प्लेयर्स हमेशा अपनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट कंपेटिटिवनेस नहीं छोड़ता, चाहे वो किसी भी एज का. बहुत एक्सीलेंट कैचेस देखे हमने इस लीग के लिए. 200 200 इस टूर्नामेंट में हुआ है, जो T20 के अंदर अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, 100 मारना कोई जोक नहीं, आसान नहीं है. तो वो 200 भी देखने में आए, 2 हैट्रिक भी देखने में आई. तो ये ऑलरेडी पहली बॉल, सबसे मजेदार चीज क्या है जो इंडोर्स हुई है कि पहली बॉल जो थी MCL की वो 6 थी, छक्का लगा था उस बॉल के ऊपर. तो ये जो हिस्ट्री में जो चीजें लिखी जाने वाली है वो है. और कल हमने एक और इसका मुताला किया था कि हमारे को रन कितने हुए, टोटल टूर्नामेंट में कितने रन बनाए गए. तो 5000 से भी ऊपर रन इस 18 मैचेस 36 इनिंग्स में लगे. तो इस इनिंग्स का अगर एवरेज निकाला जाए तो 160 रन्स पर इनिंग्स बना है, जो मेरे ख्याल से अगर कोई भी टूर्नामेंट उठा ले T20 का जो करंट है, अगर उनके सारे टूर्नामेंट की इनिंग्स उठाए, ये इनिंग्स की बात कर रहा हूँ, मैच भी नहीं, ठीक है, कि एक इनिंग में 250 रन बने और दूसरी 130 पे ढेर हो गई, लेकिन हम पर इनिंग्स को अगर एवरेज निकाले तो 160 रन पड़े, विच इज नॉट ए जोक. इट मींस 8 रन पर ओवर की आपकी ये आई है निकल कर. तो कंपेटिटिवनेस तो था, चाहे वो 40 प्लस के प्लेयर्स हो या उसके 50 के भी क्लोज थे काफी. तो इंशाल्लाह, क्योंकि हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया है MCL का, के रिटायरमेंट के बाद ही ज्वाइन कर सकते हैं, उससे पहले या डिलिबरेटली आप 25 साल के और रिटायर होकर आके आप खेलना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है हमारे पास. ठीक है, तो आपको पहले माइंड से बनाना पड़ेगा कि पैसों के लिए नहीं आ रहे हैं आप मास्टर होकर आ रहे हैं. क्वालिटी ऑफ द प्लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इसको
एक्सट्रीम लाइन करना और सिटिंग डाउन विद ECB, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ, ICC के साथ बैठ के कि ये चीज़ दोबारा रिपीट नहीं हो, कि जो डिलिबरेट कुछ प्लेयरों ने रिटायरमेंट लिया और पता नहीं वो शायद रिटायरमेंट वापस ले लें ड्यू टू व्हाटएवर फैक्टर, तो हम लोग उसके ऊपर भी काम करेंगे इस साल। और नंबर 2 जैसे कि है, आप देख रहे हैं कि करंटली कितने प्लेयर रिटायरमेंट के करीब हैं जिनका ऑटोमेटिकली इस प्लेटफॉर्म पे आना बनता है, क्योंकि लाजमी आता है वो घर पे बैठ के फैमिली अफेयर तो नहीं चलाएंगे, उनको आके ग्राउंड में ही खेलना है। तो सर आपके जहन में ऐसा कोई पॉसिबल लाइनअप नजर आ रहा है आपको, एक कोई लिस्ट ऑफ प्लेयर्स या कोई मुमकिन प्लेयर्स जो आप देख रहे हैं कि माइट बी जंप इनटू द सीजन 2? या आपके सामने माइकल क्लार्क रिटायर हो चुका है, ऑल फॉर्मेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल 3 फॉर्मेट, T20, वनडे एंड टेस्ट मैच। ये नहीं कि आप T20 से रिटायर हो गए मिसबा की तरह, वनडे से रिटायर हो गए आप टेस्ट मैच खेलने और आप यहाँ खेल सकते हैं, नहीं। हम हर बोर्ड को अपने साथ लेके चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि ये MCL के प्लेटफॉर्म पे कि बोर्ड की ब्लेसिंग के साथ हम लोग काम करना चाहते हैं कि आप लोगों के पास, उनके पास सोशल वेलफेयर का सिस्टम नहीं है, कोई पेंशन स्कीम किसी बोर्ड के पास नहीं है प्लेयरों के लिए, तो ये पेंशन स्कीम है। अगले 4 साल 5 साल आप यहाँ पे आके कुछ पैसा कमा सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जिसके लिए आप रिलैक्स एटमॉस्फेयर में भी काम कर सकते हैं। वो नहीं कि जैसे कि जो बंदिशें होती हैं बोर्ड्स की उसके अंदर, तो काफ़ी रिलैक्स। अच्छा सर, मुझे छोटा सा एक ब्रेक पे भी जाना होगा, लेकिन ब्रेक से पहले मुझे आप एक सवाल का जवाब दे दें कि जहाँ बोर्ड की आपने बात की, मैंने ये देखा कि जिस तरह सम थिंग्स आर कमिंग टू माय माइंड, साउथ अफ्रीकन प्लेयर थे, पेटरसन थे और फिडेल एडवर्ड्स थे, उनके बोर्ड्स ने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया कि आप एक रिटन कॉन्सेंट दो और उसके बाद MCL में जाओ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी बॉदरेशन मैंने देखी बहुत ज़्यादा थी कि आप साइन करो। रज़ाक वाला ने ऑफिशियल हमारी फरत कर, उनकी तो क्रिकेट पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, साइंस करवाए गए, मोहम्मद यूसुफ से करवाए गए, मोहम्मद यूसुफ ने हमारे प्रोग्राम में भी इजहार किया। तो आप समझते हैं कि ये कोई जस्टिफिकेशन है या इट इज़ इन द लीगल प्रोसेस, ओके इट्स नो प्रॉब्लम, या अप्रिशिएट करते हैं जो फिडेल एडवर्ड्स और जो पेटरसन वगैरह, उनको ऐसे किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा, उनके बोर्ड्स ने कोई ऐसा मुतालबा नहीं था कि आप रिटायरमेंट को ऑफिशियल डिक्लेयर करो और देन गो टू द MCL? देखिए, सबसे पहले अगर आप MCL से पहले की हिस्ट्री उठाएं, वो कोई भी प्लेयर 99% रिटायरमेंट के बगैर ही वो डाइल्यूट हो जाते थे कि आपको एक परफॉर्मेंस नहीं आई, 2 परफॉर्मेंस नहीं है, आप टीम में पिक नहीं और दोबारा आप गायब हो गए, उनको फेयरवेल भी नहीं मिलता था। जैसे कि इंजमाम भाई को मिला, या लारा को मिला, या मुलरी को मिला, या शेन वॉन को मिला, या तेंदुलकर को मिला। अगर इस लेवल पर अगर हम लोग बोर्ड तैयार है कि भाई अब आप पीक पर आ गए हो, शोएब अख्तर की मिसाल ले लें, शोएब अख्तर को क्यों नहीं मिला? देना चाहिए ना, आप बोर्ड को डिसाइड करना चाहिए कि अब इसके बाद अब आप पीक हैं, आप प्लीज यंगस्टर को दो। हो सकता है PSL के जरिए वो एक फ्लो प्लेयर्स का आना शुरू हो जाए। अगर अपनी जगह, लेकिन शोएब की बहुत कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट में, कोर्स यू कैंट इग्नोर हिम। रावलपिंडी एक्सप्रेस, लुक एट ये लकब जो स्लोगन्स कम लोगों को मिले हैं, ये इतनी बड़ी अचीवमेंट। One of the fastest बॉलर 100 माइल्स एन आवर किसने बॉल करी पूरी दुनिया में, आप बता दें। और अगर उसको भी हम सलूट ना करें, उसको भी अप्रिशिएट ना करें और डिग्निटी के साथ उसको कहें थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग द पाकिस्तान कंट्री, एक्चुअली नॉट जस्ट ए बोर्ड, इज अ कंट्री इट इज रिप्रेजेंटिंग, तो एम्बेसडर होते हैं लोग, तो वो चीज़ नहीं मिली। तो इस प्लेटफॉर्म के लिए अभी जल्दी से आते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोग ऑटोमेटिक रिटायरमेंट देना शुरू कर देंगे व्हेन दे फील दे हैड इनफ, दे कैन नॉट कंटिन्यू विद कंपेटिटिव क्रिकेट एज द बोर्ड इज रिक्वायर्ड। लाइक मिचेल जॉनसन को आप देख लें, माइकल क्लार्क को देख लें, उन्होंने एक लेवल पे आके पीक पे रिटायर किया अपने आप को। जब वो पीक पे रिटायर करेंगे तो वो गुड नोट्स में जाते हैं कि जैसे कि अगर इमरान खान साहब की मिसाल ले लेते हैं, वर्ल्ड कप जीतने के बाद अगली इनिंग्स नहीं खेली। सर ऑस्ट्रेलिया की ये वाहिद मिसाल नहीं है, ये मिसालें पहले भी हैं। आपके माइकल बेवन पीक पे गए थे, वो इसलिए कि वो सर्टिफिकेट क्रिकेट खेलते हैं, उनका रिप्लेसमेंट बेंच बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका रिप्लेसमेंट बेंच स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो शेफील्ड क्रिकेट खेल के आते हैं, इंग्लैंड वाले काउंटी खेल के आते हैं, आपके हाथों पीछे है ही नहीं। इमरान खान साहब बैठे हुए हैं, मियां दाद साहब बैठे हुए हैं, वो नेट पे यार लड़का अच्छा लग गया, ले आओ इसको, वो चांस दे दिया।
आप तो बाय चांस वसीम अकरम को डिस्कवर करती हैं, आप बाय चांस वकार यूनुस को डिस्कवर करती हैं। उनके लड़के तो परफॉर्म करके मेच्योर होके वो बाउंड्री के बाहर गिर के वो हाथ मार के वो वाले कैच प्रैक्टिस करके आए होते हैं। आपके लड़के वनडे मैच का फाइनल वाले दिन अंदर वो मिस्टेक्स कर रहे होते हैं कि घुटना कहाँ टेकना है और वो क्या करना है। ये बात आपकी सही है, लेकिन अगर आप देखें कि मीडिया कहाँ है आजकल, अब डिफरेंट चीज़ें होती जा रही हैं। PSL आया इसी के लिए है कि इसको फिल्टर करके उस लेवल पे लेकर आया जाए कि जहाँ पर बोर्ड्स इन्वॉल्व होंगे, सिलेक्टेड इन्वॉल्व होंगे, वो देख रहे होंगे कि किस टीम में कौन सा प्लेयर, चाहे वो जीते या हारे, वो एज ए इंडिविजुअल प्लेयर करके आ रहा है, उसकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या है, वहां से वो लेकर आएंगे तो सिस्टम तो बन जाएगा। PSL के जरिए चाहे PSL की पावर IPL के बराबर हो या ना हो, या बांग्लादेश के बराबर बना हो, लेकिन क्रिकेट इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि सिलेक्टर को अपने ऑफिस से निकलना पड़ेगा। जो बाबे बैठे हैं बोर्ड्स के अंदर, उनको बाहर निकल के आके देखना पड़ेगा प्लेयर करके आ रहा है। अराउंड 75 प्लेयर्स में से 80% तो पाकिस्तानी है ना, यंगस्टर्स हैं, न्यू टैलेंट है, तो वो देखेंगे। अब उनको वो बैठ के चाय कॉफी का टाइम खत्म, करना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म अच्छा है। यहाँ पर हम लेंगे नाज़रीन छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जफर साहब से कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, इनकी फेवरेट टीम भी पूछेंगे कि इनकी फेवरेट टीम इस मैस्टर चैंपियन लीग में कौन सी थी। डोंट गो अवे, वी विल बी राइट बैक। मैच पॉइंट बाय डॉक्टर अदनान।